So today we will continue to study use of Green's function to solve second order boundary value problem. So step by step what we do in Green's function. So firstly, uh, you need to solve the homogeneous one. Okay, so and this is the important point that you write two solution of homogeneous in that way where one solution vanishes at one boundary, say y1, and another solution vanishes at another boundary at b. So y2 vanishes at b and y1 vanishes at a. Then you construct the Green's function in that way. So they satisfy the conditions that this Green's function is 0 at a. So this is similar to that you have studied variation of parameters. So that is another way to construct Green's function from variation of parameters. So what you did in variation of parameters, so you write the solution of homogeneous one and then multiply with something. So that idea is similar here. So, and main thing is that these are the properties. So this function is continuous. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी है. पहला तो है होमोजीनियस सॉल्व करना है. एक लेफ्ट पे वैनिश हो रहा है, एक राइट बाउंड्री पे वैनिश हो रहा है. कंटिन्यूटी क्राइटेरिया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. फिर हमने लास्ट में इक्वेशन में प्लग इन किया था इसको. देन यू गॉट दिस जंप इन डेरिवेटिव. So solving for a and b, you got this Green's function. तो इसको थोड़ा अपने ध्यान किस वे में रखना है. एक्स लेस देन अक्साई, ठीक है, तो ऊपर y1 x है, ठीक है, और सेकंड में जाई ग्रेटर जाई लेस देन x है तो इसमें y2 है, ठीक है. फर्स्ट में लेफ्ट है, लेफ्ट दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है. y1 इसमें y2 कर दो, इसमें y2 है, इसमें y1 कर दो, ठीक है. एक तो y1x यूज हो रहा है इसमें फर्स्ट में और y2x सेकंड में, इंडायरेक्टली दोनों यूज हो रहे हैं. फिर हमने जो नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन है बिगनिंग में हमने कहा था दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ ग्रीन्स फंक्शन मल्टीप्लाई बाय दैट f. ग्रीन फंक्शन को f से मल्टीप्लाई कर दो तो इंटीग्रल को स्प्लिट किया a टू x देन x टू b. तो जो फर्स्ट टर्म जो मैं लिखा है मैंने, फर्स्ट टर्म में आप x तक जा रहे हो तो दिस इज i लेस देन x. तो ये कैसे लिखा है मैंने, ये एक्चुअली ये है सेकंड वाला, ठीक है, जाई लेस देन x. तो इसमें आपका y2 बाहर रहेगा, इंटीग्रल जाई के सेंस में है. सो जस्ट प्लग इन दी सेकंड वैल्यू हियर विच इज y2 y1, ठीक है. ग्रीन फंक्शन का वैल्यू डाल दो और साथ में f से मल्टीप्लाई कर दो, f अक्साई डी जाई. और सेकंड में क्या है x, सेकंड में जो फर्स्ट इंटीग्रल यूज हुआ है फर्स्ट में x लेस देन जाई, सो दिस इज x लेस देन अक्साई. सो इनफैक्ट दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म. तो जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है सो वी कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली.
So first find, so what are the steps? Find y1 and y2 from homogeneous equation so that one solution vanishes at left boundary and second solution vanishes at second boundary. Then construct Green's function. Construct Green's function. कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? So this by this formula. So you can write construct Green function through formula star. And then finally fit value here. So what is yx? Yx is solution of non-homogeneous equation. So this is given by this formula. So integral of g multiply by f then a to b. तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आइडिया सिमिलर है, दैट यूज फर्स्ट सॉल्व होमोजेनियस वन दैट यू डिड मैनी टाइम्स. Solve the homogeneous equation, then use the solution of homogeneous to write the solution of non-homogeneous one through Green's function. And this function has two important property. One is continuity, g is continuous, and second is jump in derivative that we have written earlier. तो इनको लगा के अब कोई भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. यू कैन कीप memorizing the final formula. There are many ways to construct these green functions. तो solve, so find the Green's function. क्वेश्चन है find the Green's function for the boundary value problem. y0 equal to 0 and y1 equal to 0, and hence solve, hence find its solution. तो फर्स्ट स्टेप है that you need to solve a homogeneous one. So the homogeneous equation y dash equal to 0 has, you can say, solution, general solution or fundamental solution in the form as solution. क्या होगा solution इसका? What will be solution? म्यूट कर रखे हैं तुम लोग. What will be solution? C1x plus C2. C1x plus C2. Okay. So this equation has two fundamental solution. Two fundamental. ये भी लिख सकते हो fundamental solutions. 1 and x. अभी मैं इनको y1 y2 नहीं कह रहा. ठीक है, क्यों नहीं कह रहा? अब उनकी प्रॉपर्टी क्या है? बाउंड्री क्या है? 0 और 1, उस पर वैनिश होने चाहिए. तो अब हमें पता है कि सॉल्यूशन आपका एक तो x है, ठीक है, एक बाउंड्री आपका 0 है. सो व्हेन यू फिट 0 दिस विल बी 0, बट सेकंड सॉल्यूशन इज कांस्टेंट. तो एक बाउंड्री तो ये कवर कर, इसने कवर कर दिया, ये यूज कर लोगे आप. ठीक है. सो से दिस इज y1. So we can take y1 equal to x as y1 satisfy left boundary. अब सेकंड, अब इसको भी यूज करना है 1 को. अब 1 तो वैनिश होगा नहीं, कांस्टेंट है, बट यू कैन टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन. 1 और x का कॉम्बिनेशन ले लो, और वो ऐसा कॉम्बिनेशन लो जो 1 पे वैनिश हो. तो क्या लें?
1 minus x. हाँ शाबाश, 1 minus X. 1 minus x. Okay, so second solution we take y2 equal to 1 minus x, as this y2 will vanish at 1. Okay, so these y1 y2 satisfy the boundary conditions. तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे. सो देन रॉन्स्कियन लिख लेते हैं. पहले रॉन्स्कियन का भी यूज है ना उसमें. रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट x. व्हाट विल बी रॉन्स्कियन? y1 y2 dash minus y2 y1 dash 1 आ जाएगा. x minus 1 1 minus x 1. तो क्या बचा? -1. Okay, so therefore now write Green's function. So gx xi इक्वल टू फार्मूला जो लिखा था हमने पहले, ये लिख लो y1x y2 xi. p इक्वेशन में आपका 1 है. ठीक है, तो सिंबॉलिक y1 क्या बनेगा? फाइनल फार्मूला y1x बोलो. तो एक बार फार्मूला लिख देते हैं. चलो लिख दें. सो y1x y2 xi डिवाइड बाई p1 है. सो रॉन्स्कियन एट xi. ये वैसे दूसरे वाला है, या तो उल्टा भी लिख सकते हो आप. और सेकंड वाला y2x y1 xi डिवाइड बाई रॉन्स्कियन एट xi. सो व्हाट आर दीज वैल्यूज? रॉन्स्कियन -1 है. सो फर्स्ट वन विल बी y1x. सो x xi -1. मैं -1 को अंदर ले गया. ठीक है, w xi -1 है, कांस्टेंट है ये तो. और सेकंड क्या बनेगा? y2x y1 xi यानी कि xi x -1. तो अब इनको ये वाला फाइनल, आप सीधा भी लिख सकते हो फाइनल इक्वेशन को. अब इंटीग्रल कर दो इनका. ठीक है, ये फार्मूला यूज किया हमने. y1x y2 xi डिवाइड बाई p इज 1, रॉन्स्कियन इज -1. ठीक है, तो y1x इज x. दिस विल बी y2 xi विल बी 1 माइनस xi डिवाइड बाई -1. तो -1 को ऊपर लिख दिया मैंने. सेकंड में y2x which is x -1 this is 1 minus x. So and y1 xi will be xi.
So xi less than x और x लेस देन xi। अब इनका इंटीग्रल कर दीजिए आप। सो फाइनली सॉल्यूशन इज the solution of non-homogeneous equation is y equal to y2 को बाहर लिखना है आपने, ठीक है, x माइनस वन 0 टू x, यानी कि सेकंड वाला यूज करना है आपने, s सॉरी अच्छा xi और f ऑफ xi क्या होगा, fx इक्वल टू x स्क्वायर, सो दिस विल बी xi स्क्वायर देन d ऑफ xi प्लस x टू 1 ऊपर वाला अब यूज करना है, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाले में x है, x को आप बाहर लिख दो इंटीग्रल से, अब xi के सेंस में इंटीग्रल कर रहे हो, देन यू हैव xi माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज y2 xi मल्टीप्लाई बाई, यानी कि जो आपने ऊपर ग्रीन फंक्शन लिखे हैं इनको इनको यूज कर लो आप, ठीक है। पहले ये फर्स्ट में ये यूज होगा, सेकंड में ये यूज होगा, इनको एफ xi से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर दो, एफ xi विल बी xi स्क्वायर, so this will be xi square then d xi। तो फर्स्ट आपका x माइनस वन है, ये xi क्यूब बन जाएगा, सो xi 4 यानी कि x4/4 आ जाएगा ना, चेक कर लेना, और इसको आप लिख सकते हो xi क्यूब माइनस xi स्क्वायर, so xi क्यूब will be xi 4/4 minus xi क्यूब माइनस xi स्क्वायर, xi क्यूब बाई 3, x फिट करोगे, अपर लिमिट फिट करोगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेना, सो 1/12 x4 माइनस x। तो ये ध्यान रखना है, जो y2 x है जो इस बाउंड्री पे वैनिश हो रहा है, y2 वो इधर यूज है, हालांकि दोनों यूज है अगर मैं x में कहूँ, मतलब याद रखने के लिए। और फर्स्ट में जो y1 है जो इधर लेफ्ट में वैनिश हो रहा है वो सेकंड में यूज हो रहा है। कई बुक्स इनको उल्टा लिखती हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद नोटेशंस। कई बुक्स इनको मतलब रिवर्स में लिखते हैं, बट आइडिया इज सेम। तो सिंपल है ग्रीन फंक्शन, आई विल नॉट आस्क देयर प्रूफ, you should you should be familiar with the properties of Green's function. They are continuous, they have jump in derivative, so they satisfy boundary condition. First solve the homogeneous one, write the solution of homogeneous one, but don't take y1 and y2 as direct solution. First check that one solution satisfy one boundary, जैसे ये था ना, एक एक लेफ्ट बाउंड्री सेटिस्फाई करे और दूसरा राइट बाउंड्री सेटिस्फाई करे। डायरेक्टली करें अच्छी बात है, नहीं करे फाइंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन सो दैट दीज कंडीशंस आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। देन राइट ग्रीन्स फंक्शन बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड देन इंटीग्रेट। अब इंटीग्रल कैसे करना है, एफ से मल्टीप्लाई करके, ओके, सो मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ xi एंड देन इंटीग्रेट। और सिंबॉलिक है, इंटीग्रल जाई के सेंस में है, एक्स वाई टर्म कांस्टेंट ट्रीट होंगी, राइट देम आउटसाइड। So once you are able to solve homogeneous problem,
then you can solve non-homogeneous for any fx. So और एक इनका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जी की कंस्ट्रक्शन के अंदर एफ का कोई रोल नहीं है. सो जी डिपेंड ऑन y1 एंड y2. अब कहने का मीनिंग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप मान लो आपने ये प्रॉब्लम से ग्रीन फंक्शन बनाए, तो कोई दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो सिमिलर, मान लो मैंने ये सॉल्व करना है, बाउंड्री कंडीशन अगर सेम है तो ये जो फंक्शन है इसमें यूज हो जाएंगे डायरेक्टली. सो ग्रीन्स फंक्शन डोंट डिपेंड ऑन राइट हैंड साइड. So if you are able to solve one problem, then you can also solve a second problem with same Green's function. तो अगर राइट हैंड साइड चेंजिंग हो तो इनको हम यूज कर सकते हैं. बाकी प्रोसीजर इज सिमिलर टू वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. सो एक एग्जांपल और ले रहा हूँ. सो आई एम राइटिंग इन सिंबल्स. जस्ट फाइंड द ग्रीन्स फंक्शन of boundary value problem y double prime plus y equal to f of x with boundary condition y at 0 is 0 and y dash 1 is 0. Help me to solve. सर इस केस में हम डेरिवेटिव चेक करेंगे कि डेरिवेटिव बाउंड्री तो पहले फंडामेंटल सॉल्यूशन लिख लो होमोजेनियस के ना. सो c1 cos x plus c2 sin x इक्वेशन होमोजेनियस has solution in the form y equal to c1 sin x plus c2 cos x. So you have two fundamental solutions, sin and cos. तो अब बाउंड्री देख लो. फर्स्ट कंडीशन क्या है, y0 इक्वल टू 0, तो साइन तो वैनिश हो जाएगा. यस सर. So we can take y1 x equal to sin of x as y1 satisfy left boundary. What about y2? Can you take y2? अब सेकंड कंडीशन डेरिवेटिव में है. अब cos का डेरिवेटिव sin होगा, sin 1 पे तो 0 होगा नहीं. यूज दोनों करने हैं आपने, ठीक है, एक से नहीं लिख देना. क्या करें फिर सेकंड को. अब y का डेरिवेटिव cos का sin बन जाएगा. sin को 0 बनाना है 1 पे. Sin minus sin. हाँ जी. तो y2 क्या लेना हमने cos से ही है. मतलब आप क्या cos लिखोगे, cos का एंगल क्या लोगे कि डेरिवेटिव करके वो sin बने और 1 पे 0 बन जाए. अगर x की जगह x माइनस 1 हो तो फिर कर सकते हैं ना. यस सर. और cos a माइनस b को एक्सपेंड करोगे तो वो cos और sin ही मिलने हैं उससे. so second solution we can take, you can write cos x minus 1 or 1 minus x. There is no problem with both. So cos x minus 1. So अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का माइनस साइन, ठीक है. So this derivative at 1 will be 0. सर मतलब आपने सेकंड सॉल्यूशन सेकंड y2 निकालने के लिए कहा था, या तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हम एंगल भी चेंज कर कॉम्बिनेशन ही है ये. इसको एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा इससे, cos x cos 1 plus cos 1 तो कांस्टेंट है प्लस sin x sin 1 जो भी आएगा. sin 1 cos 1 तो नंबर है ना, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है. ठीक है ओके सर. sin और cos का ही है ये, ठीक है.
हाँ, अगर ई वाले कुछ होते फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, बट साइन कॉस को आप एक दूसरे की टर्म में लिख सकते हो बाय यूजिंग कॉस ए माइनस बी फार्मूला. सो देन राइट द रॉन्स्कियन. बोलो क्विकली कितना आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. Green's functions are लिख लो फार्मूला, भूलोगे नहीं फिर. P प्रॉब्लम के अंदर 1 है, ठीक है. देन यू राइट y2x y1 अक्साई डिवाइड बाय रॉन्स्कियन. बताओ भी रॉन्स्कियन कितना आएगा. सिंप्लीफाई कर लेना, फिर आपको रॉन्स्कियन में फार्मूला यूज करना पड़ेगा ये cos a माइनस बी वाला. चलो करना. दिस इज cos माइनस cos 1 और 1 रेडियन Yes, मोड sir. में है ये. सो राइट. तो y1x क्या होगा. अगर आप y1x विल बी sin x, ठीक है, और cos अक्साई माइनस 1 माइनस cos 1 से डिवाइड किया, ठीक है, तो माइनस ऊपर लिख दिया मैंने. और सेकंड माइनस cos x माइनस 1 y2, देन y1 अक्साई sin अक्साई डिवाइड बाय cos 1, ठीक है. फर्स्ट में क्या यूज किया हमने, xi लेस देन x, और यहाँ पे x लेस देन xi. सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज. अब इसने सिंबॉलिक का f हमें नहीं बताया, सो वी विल जस्ट राइट फार्मूला. सो you can write a limit 0 to 1 g x xi f of xi d xi. So this will further, you can divide up to 0 to x. इसमें सेकंड वाला यूज होना है. जो कांस्टेंट हैं उनको बाहर लिख दो आप. इंटीग्रल होगा आपका साइन xi का, जो भी f xi होगा उससे. और सेकंड के अंदर ये वाली टर्म लिख रहे हैं माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos 1, दिस गाई, इंटीग्रल x to 1 cos अक्साई माइनस 1 f of अक्साई d अक्साई. So this is the solution of non-homogeneous one. So once you are able to construct Green's function, so you can solve the non-homogeneous one. So can you say that these are Sturm-Liouville problem? Let us say first example. Can you say that this is SLBVP? R नहीं है. This is not SLBVP. Q 0 हो सकता है. This is not SLBVP. Second वाली है. Don't forget the standard form. SLBVP की standard form क्या है? If I say regular one,
So minus px y dash dash plus qxy equal to lambda rxy. This is with boundary condition, that is also important. So you have y at a, some y dash at a, alpha 1 beta 1 equal to 0, then some alpha 2 y at b and beta 2 y dash at b. So this is regular one. अगर अगर ये फॉर्म है उसको आप कहोगे, यानी कि एक कंडीशन ए पे है, दूसरी बी पे है, तो इसको आप कहते हो रेगुलर वन. सो दिस क्यू कैन बी जीरो इन मोस्ट ऑफ केसेस, ये रहा भी है हमारा. बट पी एक्स इज पॉजिटिव. पहचान क्या है? पी पी डैश क्यू आर, दे आर कंटिन्यूस फंक्शन. पी एक्स पॉजिटिव, आर एक्स इज आल्सो पॉजिटिव. देन यू से दैट दिस इज रेगुलर वन. फिर दूसरी हमने लिखा था पीरियोडिक. डोंट फॉरगेट, पीरियोडिक में क्या कंडीशन थी? यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट बाउंड्री कंडीशन इंस्टेड ऑफ दीज कंडीशन, ये क्या है? इनकी पहचान देखो, ए पे कंडीशन है पहली, ए पे, दूसरी बी पे, और पीरियोडिक में क्या था? y इक्वल्स दोनों यूज हो रहे हैं, y at a इक्वल्स equal टू to y y at b, डैश a, चारों इक्वल ठीक हो है, जाएंगे. और y dash a equal to y dash at b. So this is periodic. And third case we will study right now. So this chapter is almost going to finish. So now we move to singular one. तो इनको वैसे बोलते भी हैं बाउंड्री. क्विज में फिर ये ग्रीन्स फंक्शन भी आएगा. हैं? सर क्विज में फिर ये ग्रीन्स फंक्शन भी आएगा. हाँ, क्विज में ग्रीन्स फंक्शन तक, यहाँ तक आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा. सर और पिछले क्विज के मार्क्स कैसे पता लगेंगे? कोई नहीं, मैं कर दूंगा उसको. आपको आंसर दिख जाएंगे, जितने आपके करेक्ट आंसर हो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना. ओके, सिंस गूगल इज नॉट टेकिंग फ्रैक्शनल मार्क्स, तो 1.5 नहीं लेता वो या तो 1 लेता है या 2. बट आई हैव, दिस इज वेरी डिस्करेजिंग. बहुत पुअर परफॉर्मेंस है सबकी सेकंड में स्पेशली. But don't worry, so from out of 3, best 2 will be considered. So if this Zoom stops at 4:40, then you need to re-log in. We will continue. So third kind of problem are singular Sturm Liouville boundary value problem. So up to now we have studied Sturm Liouville problem in this form. So L of y equal to minus px y dash dash plus qxy equal to lambda rxy. So for simplicity I am taking from 0 to 1. So together with boundary conditions that we have taken alpha 1 y at 0. So this is regular one. Alpha 2 y at 1. So this is regular. Beta 2 y dash at 1 equals to 0. Okay, so we have considered this regular problem. And regular and periodic, so they have similar study. हमने बीच में periodic का भी 1-2 एग्जांपल किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो. सेम उसमें भी है, आइगन वैल्यू उसका भी रियल होता है, आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल दोनों में होते हैं. बट सिंगुलर में क्योंकि सिंगुलैरिटी है, सो वी नीड टू कंसीडर इट सेपरेटली. सो अब रेगुलर में क्या था? सो वी हैव अज्यूम दैट p p डैश
Q, R, they all are continuous. So what was the assumption of regular? So P, Q, R, indirectly P dash B hai, they all are or are continuous, and Px is positive and Rx is also positive at all points. At all points in closed interval, that 0 to 1. But however, some problems don't satisfy these conditions. So for example, I'm starting with, so all the problems don't satisfy these regularity condition, don't satisfy these conditions. So for example, if we consider Bessel's equation, I hope you remember this equation, Bessel's equation, x square y double prime plus xy prime plus x square minus alpha square y equal to 0. So if I write its self-adjoint form or SL form, so quickly I can write in this form. इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, हमने शुरू में लिखा था ना, सेकंड ऑर्डर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एसएल फॉर्म के अंदर. यहाँ आपने बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है, सो यू कैन राइट माइनस एक्स वाई डैश डैश प्लस अल्फा स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल्स टू xy. So here we have px equal to x, qx equal to alpha square by x, and rx equal to x. So and consider this problem on interval 0 to 1, on the interval 0 to 1. So what will happen at 0? मतलब 0 उसका boundary है. You can check that. अब ऊपर क्या था, px पॉजिटिव था ना, बट यहाँ पे क्या होगा, p0, that will be 0. Even r0, that is also 0. And what about q? जो लेफ्ट बाउंड्री है, even q is unbounded and qx is unbounded. Q is unbounded as x approaches to 0. So if you consider this boundary value problem on 0, 1 interval, so px is positive, that is not satisfied. Rx is positive, that is also not satisfied. Q is continuous, so this fails at x equal to 0. So such type of problem, they are known as यानी कि जो रेगुलर और पीरियोडिक नहीं है, they are singular. So this is just one example of singular problem. Second example, अब बेसल इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना. Second example, you can take Legendre इक्वेशन, याद है, भूल गए? Legendre's equation 1 minus x square y double prime plus 2xy prime plus alpha plus 1 y equal to 0. This equation, सर इक्वेशन में -2xy डैश नहीं आएगा? माइनस आता है. Yes, sir. Okay. So let me know the self-adjoint form. Write it quickly. We did it many times. -d by dx. ये वाली फॉर्म बोलो, लास्ट वाली. So like this.
SL form. minus 1 minus x square into y dash. Minus 1 minus x square x square y dash y dash सारे का डेरिवेटिव. सारे का डेरिवेटिव सारे का dash, शाबाश, equal to अल्फा अल्फा प्लस 1y. shabash. So in our notation, so we consider this equation on -1 to 1. So in usual notation, so we have px equal to 1 minus x square, qx is 0 here, and what is rx? This is 1, and lambda alpha plus 1. So you can check that P is continuous. तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? Can you say this is regular problem on -1 to 1? If I take boundary -1, left boundary -1, and right boundary +1. What will happen at boundary -1 and 1? P क्या बन जाएगा यहाँ पे? दोनों पे 0 P will be 0. But in regular problem, you have px is positive. Okay, so this is just another example of singular Sturm-Liouville problem. So what are these problems? So these are certain boundary value problems in which the functions p, q, and r, they can satisfy the conditions on open interval. You can write a to b, but fails to satisfy these conditions at one of the boundary, one or both of the boundary points. So these are known as singular Sturm-Liouville boundary value problem. So this S is from singular. Also, singular problem occurs if the interval is unbounded. For example, you have something like that. तो अगला हमारी क्वेरी है कि हमने पढ़ा था रेगुलर प्रॉब्लम एंड पीरियोडिक प्रॉब्लम, their eigenvalues are real, they have orthogonal eigenvectors, and for the regular problem eigenfunctions are simple. So all of the proofs was provided by using Lagrange identity. तो कहने का मीनिंग है कि अगर आपका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सिंगुलर प्रॉब्लम
if that problem satisfy Lagrange identity, then you can say that. अब आपको अगर प्रूफ में ध्यान हो, हमने आइगन वैल्यू रियल हैं, ऑर्थोगोनल हैं, एक टर्म बचा था बाउंड्री वाला, px मल्टीप्लाई बाय सम टू टर्म्स दैट इज इक्वल टू 0. वो हमने प्रूव कैसे किया था? बाय यूजिंग Lagrange आइडेंटिटी. बाय यूजिंग Lagrange आइडेंटिटी. और वो बना कैसे था? विद बाय यूजिंग दीज कंडीशंस. इन पे भी वैलिड है, आल्सो फॉर पीरियोडिक. इफ यू हैव समथिंग लाइक, अगर ये है तो उसमें भी ट्रू है, y a इक्वल टू b, y dash a इक्वल टू y dash b. So Lagrange identity is valid for regular as well as for periodic problem. तो अगर आपका singular problem it satisfy Lagrange identity, then you can proceed further. So first step is to investigate Lagrange identity in term of singularity. तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो they require further investigation. So precisely what type of boundary conditions can be allowed in singular Sturm-Liouville boundary value problem. फर्स्ट क्वेरी तो ये है हमारी कि व्हाट टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन यू कैन फिक्स सो दैट यू कैन इन्वेस्टिगेट देम फर्दर. सेकंड क्वेरी है इसमें कि जैसे आपने वहां पे डिस्कस किया था दैट आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज आर रियल, आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल. कैन यू से समथिंग हियर? सो नेक्स्ट क्वेरी इज दैट to what extent do the eigenvalues and eigenfunctions of a, अब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं उसको सिंगुलर प्रॉब्लम, ठीक है. Understood that this is singular boundary value problem. For a singular problem, share the properties to what extent eigenvalue and eigenfunction share the property similar to regular problem or periodic problem. So in particular, so you can say that at what extent eigenvalues are real, or with what conditions eigenvalues are real, and with what condition the eigenfunctions are orthogonal. So both of these queries can be answered by Lagrange identity. So both of last वाले जो हैं, both of these questions can be answered by a study of Lagrange identity. So you can go back and recall that identity. So I am writing from 0 to 1. So L U लिखा था ना, L U V minus U L V, this dx equal to 0. जब हमने वहां पे प्रूफ किया था U L V, यानी कि L U पे लगाओ या L V पे लगाओ, सो बोथ आर सिमिलर. तो अब सिंगुलर प्रॉब्लम में क्या होगा? अब या तो इस बाउंड्री में प्रॉब्लम होगा या इस पे प्रॉब्लम होगा, और मे बी बोथ ऑफ बाउंड्री.
Okay, so to be definite, so we can assume, so at one boundary there is a problem. So to be definite, I am saying, I am considering that, so we consider the problem where x equal to 0 is a singular point, यानी कि लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, बट x equal to 1 is not, so this is not a singular point. तो हम क्या करते हैं, अब प्रिसाइसली ये आपका डोमेन है, अब यहां पे प्रॉब्लम है 0 पे, so I am taking any epsilon, okay, epsilon small, so I consider the problem from epsilon to 1, okay, and at the end I will fit limit epsilon goes to 0. What will happen if epsilon goes to 0? Okay, so we take, or we consider, we take any epsilon positive, and as we studied in regular problem, जो लग्रांज आइडेंटिटी को हमने सिंप्लीफाई किया था ना इंटीग्रेशन के बाद, बाउंड्री कंडीशन में उसको लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आप पीछे से रिकॉल कर सकते हो, हमने ये प्रूफ कर दिया था ना वहां पे कि एल यू वी इक्वल टू वी एल यू आ जाएगा, जो प्लस बाउंड्री थी वो टर्म 0 बन जाए, तो उसी वे में प्रोसीड करना है, आई एम राइटिंग द फाइनल टर्म, सो अब 0 को फैलन टू 1 ले रहा हूं मैं, एल यू वी माइनस यू एल वी, वहां पे हमने ए टू बी लिखा था, सो दिस विल रिड्यूस, जो बाउंड्री टर्म पे आएगा लास्ट में, by taking to u and v, so u dash x vx minus ux v dash x, okay, so and boundary fell into 1. अब 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 1 पे आपने कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हो, इस टाइप का, ये वाला, यू कैन टेक दिस वन, तो वैनिश हो जाएगा 1 पे, तो आप टर्म फिट करोगे, दो पार्ट में सेपरेट होगा ये, दी बाउंड्री टर्म at x equal to b is eliminated if both u and v satisfy the condition सेकंड वाली कौन सी थी, अल्फा टू, दोबारा लिख दो चाहे इसको यहाँ पे, अल्फा टू y1 प्लस बीटा टू y डैश 1 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर सेम प्रूफ देखना आपने पीछे वाला जो हमने पहले कर रखा है डिटेल में, सो देन फैल इनटू 1 लेफ्ट हैंड साइड, ये रिड्यूस होके
लोअर लिमिट फिट करोगे, यानी कि पहले आपने 1 फिट कर देना है, और हमने पहले किया था ना, एक को दूसरे में चेंज किया था, अगर आपको ध्यान हो, सेम अडॉप्ट करना है तो दो टर्म सेपरेट होंगी, एक 1 वाला एक एप्सिलॉन वाला। तो 1 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, जो एप्सिलॉन वाला बचेगा नेगेटिव फिट करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पी एप्सिलॉन। सो यू डैश एप्सिलॉन वी एप्सिलॉन माइनस u एप्सिलॉन v dash epsilon. So this will be the final, just same as we did in for regular problem. अब लिमिट लगा के देखते हैं, टेक लिमिट epsilon goes to 0. So what you got left hand side as it is equal to limit epsilon tends to 0. अब 0 को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये 0 पे आ ही जाएगा, बट सेकंड में ये बन जाएगा लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 p एप्सिलॉन u डैश एप्सिलॉन v एप्सिलॉन माइनस u एप्सिलॉन v डैश एप्सिलॉन। तो ये 0 नहीं बना, ये कंडीशन आ गई अब आपके पास, और यहां पे हमें एक चीज और इंपोज करना पड़ेगा। सो वन कंडीशन इंपोज क्या कर रहा हूं, y and y dash are bounded as x goes to 0. One restriction या कंडीशन कह लो that you need to impose. अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब u और v के डेरिवेटिव भी आ रहे हैं और u और v क्या सोल्यूशन ही है, तो अगर y और y डैश बाउंडेड हो तो ये चीज क्या होगा, दैट विल रिमेन बाउंडेड। अब फिर p पे डिपेंड करेगा, अगर p एप्सिलॉन पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई बाउंडेड दैट विल बी 0, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे आपका सॉल्यूशन कि y और y डैश बाउंडेड हो और p, अब अगर आपका p मान लो कुछ और हुआ e पावर x हुआ, फिर तो वो 0 को अप्रोच नहीं करेगा, बट अगर लेट अस से px आपका x हुआ तो what will be p epsilon, that will be epsilon, and what will happen if epsilon goes to 0, तो x 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका मीनिंग हुआ ये कि अब वहां पे रेगुलर में क्या आ गया था, ये 0 ही बना था, दिस गाइस वाज 0। तो अगर ये आपका 0 बने, so then you can say that your problem satisfy Lagrange identity. ओके अगर नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे ये नहीं कर सकती ये प्रॉब्लम। सो ये कंडीशन बन गया, सो दिस इक्वेशन is the condition in order to satisfy Lagrange identity. In order to satisfy Lagrange identity. Similarly, अगर राइट पे प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा, सिमिलरली if x equal to 1 has singularity, then same way में proceed करना है, then you will approach here similar condition, but अब ये p 1 minus epsilon बन जाएगा, u dash 1 minus epsilon v 1 minus epsilon minus u 1 minus epsilon v dash 1 minus epsilon
so this is 0. So if your problem satisfy this condition, or if you have a problem at right hand side, then this condition, so then you can investigate, or you can say that your problem satisfy Lagrange identity and you can proceed further. So for example, if I take Px equal to x and y dash are bounded as x goes to 0, if Px equal to x, then we have limit एप्सिलॉन goes to 0, यहाँ पे एप्सिलॉन ही आ जाएगा, Px इक्वल टू x है, जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी थी u डैश एप्सिलॉन v एप्सिलॉन माइनस u एप्सिलॉन v डैश एप्सिलॉन, so this will 0. So if you have a singular problem with Px equal to x and one condition, so you are taking problem on, बाकी सब कुछ सेम है जो आर्टिकल में लिखा है, ऑन 0 1 पे ले रहा हूं प्रॉब्लम को, ठीक है. 0 पे सिंगुलैरिटी है, बट कंडीशन क्या है, y एंड y डैश दे आर बाउंडेड, और 1 पे जो हमने कंडीशन पहले लिखा है, यूजुअल रेगुलर कंडीशन एट 1, देन सिंस दिस लिमिट गोज टू 0, so we can say that singular problem satisfy the Lagrange identity. Lagrange identity satisfy करेगा, you can talk about that the eigenvalues क्या होती हैं, आइगन वैल्यू रियल होती हैं, और आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल, देन यू कैन टॉक फर्दर. और सिंगुलर में एक स्पेशल, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन है कि यू कैन नॉट सॉल्व एनी सिंगुलर प्रॉब्लम, सो देयर इज नॉट जनरल थ्योरी. So if you have these restrictions, for example, y dash, they are bounded at singularity, and Px is a special kind of function which approaches to 0 as x approaches to 0, then only you can talk about Lagrange identity. Otherwise, if Px, this P epsilon don't goes to 0, then right hand side will not be 0. So then you cannot say that problem will satisfy Lagrange identity. So in conclusion, for some problems you can talk about Lagrange identity and you can proceed further, but there is no general theory. और एक इसमें एक स्पेशल टाइप की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, they are one special case of these problem. Maybe we can talk in next class. सर चैप्टर 4 के नोट्स भी डाल देते हैं. हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 के नोट्स. 4 कौन सा है?